Awesome revision series, Jurisprudence, Interpretation and General Laws, Chapter 14, Right to Information Act 2005. सब लोगों को प्रणाम। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि सरकार में क्या हो रहा है, सरकार क्या काम कर रही है, इस बात की जानकारी का हर नागरिक को अधिकार है और ये ट्रांसपेरेंसी लाता है गवर्नमेंट के वर्किंग्स में और उसके सिटीजन के प्रति जो कर्तव्य है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड नो what is happening in the government departments, where the public money is being used, whether it's being utilized properly or it's being misutilized. These are the information that any citizen can go on and seek from a government department, and the government is under a liability under this act to provide the information to the person seeking the information, right? So in that way we automatically get to know what's wrong and what's right, what's good and what's bad that's going on in our government system, public system. That way we are able to choose the right government, choose the right candidate and strengthen the democracy. And this is the reason why Right to Information Act 2005 was enacted. India adopted this concept of right to information quite late. There were around 70 countries before India which had already inculcated right to information as part of their legal system. But then nevertheless देर आए दुरुस्त आए, हमारे देश में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 आ गया. आवर रिविजन सीरीज आल्सो इंक्लूड्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019. India being world's largest democracy requires so much of transparency and accountability in the working of the government because of plethora of corruption cases that have come across in the recent past, and the growing concern of people in the system and the growing awareness among citizens of India regarding their governments. It is quite imperative that such laws should be there in the country. Now interestingly, the act extends to the whole of India including the state of Jammu and Kashmir. ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हुआ. राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ लीगल राइट, है ना, बिकॉज देर इज अ लॉ फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन. इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. वाई? Because in the fundamental rights given in part 3 of the Constitution of India, there is nowhere any right named as right to information. Although people connect it with Article 21 and 19(1)(a) as such, freedom of speech and expression. So you have a freedom of saying and asking the information, and also Article 21 which gives you freedom of life and personal liberty, wherein you can ask as a matter of personal liberty, you can ask the government and get yourself informed, but still it is not part of constitutional right or fundamental right. Right to information is a legal right. We have already discussed all these things in our detailed lectures. We are just getting through with the revision of this chapter. Thank you so much. Let's keep on going. Objective of the act. The objective of the act is to promote transparency and accountability in the public authorities. यानी कि एक्ट किस पे लगता है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज पे लगता है, और फिर सिर्फ और सिर्फ सिटीजन को ही इन्फॉर्मेशन मांगने का राइट है, नॉन सिटीजन को इन्फॉर्मेशन मांगने का राइट नहीं है. तो भारत सरकार की गतिविधियों की जानकारी अगर फॉरेनर कोई जॉन नाम का व्यक्ति अमेरिका से आके मांगेगा तो उसको नहीं दी जाएगी. ठीक, मजे की बात क्या है, हर पब्लिक अथॉरिटी को अपने यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, हर पब्लिक अथॉरिटी को अपने यहाँ पर पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर अपॉइंट करना है. हर वो व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन मांगना चाहता है कि क्या हो रहा है डिपार्टमेंट में, वो पीआईओ या एपीआईओ के पास अपनी इन्फॉर्मेशन की एप्लीकेशन देगा. अगर उसने पीआईओ को एप्लीकेशन दी है तो पीआईओ इन्फॉर्मेशन देगा. अगर एपीआईओ को दी है तो एपीआईओ वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करेगा, एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगा पीआईओ के पास, और इन्फॉर्मेशन फिर पीआईओ प्रोवाइड करेगा. बेसिकली इन्फॉर्मेशन देने वाला कौन होता है? पीआईओ. और पीआईओ हियर मीन्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर. नाम से क्लियर है, एक्ट का नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट. तो क्या चाहिए आपको? इन्फॉर्मेशन. तो किसके पास जाओगे? पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास. या फिर अगर एपीआईओ के पास जाओगे तो वो भी आपकी एप्लीकेशन कहाँ फॉरवर्ड करेगा? पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के पास. ठीक है भैया, डेफिनेशन है यहाँ पर पब्लिक अथॉरिटी की. पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में वो सब आते हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है. ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना. इसके अलावा वो सारी बॉडीज जिनको किसी सेंट्रल एक्ट से बनाया है. एलआईसी ऑफ इंडिया एक्ट से एलआईसी बना, आईसीएआई सीए एक्ट से बना, आईसीएसआई सीएस एक्ट से बना, तो ये आ गए. स्टेट एक्ट से, स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के किसी एक्ट से कोई बॉडी बनती है तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी है. इसके अलावा गवर्नमेंट अगर
चाहे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके कोई इंस्टीट्यूट या अथॉरिटी या बॉडी इस्टेब्लिश करती तो वो भी पब्लिक अथॉरिटी की डेफिनेशन में आएगी। सेबी आएगी, ठीक। बीसीसीआई आएगी क्या? बीसीसीआई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, उसको गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। इट वाज द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, मद्रास क्रिकेट क्लब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड लेटर ऑन गॉट कन्वर्टेड इनटू बीसीसीआई, ठीक। एनीवेज, फिर अगली डेफिनेशन है इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी रिकॉर्ड इन एनी फॉर्म, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो, मेमोज हो, ईमेल हो, ओपिनियंस हो, एडवाइस हो, रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, लॉगबुक, ऑर्डर, सर्कुलर, प्रेस रिलीज, पेपर, सैंपल, मॉडल, डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, हार्ड फॉर्म, फिजिकल फॉर्म, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म, ठीक। हर तरह की इन्फॉर्मेशन आती है, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के किसी भी मोड में वो इन्फॉर्मेशन रखी हुई हो, वो इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में आती है। इट्स ए ब्रॉड डेफिनेशन विच वी ऑलरेडी डिस्कस बिफोर। राइट टू इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं? तो राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब आप किसी भी इन्फॉर्मेशन, जो हम ऊपर डेफिनेशन पढ़ के आए इन्फॉर्मेशन की, उस इन्फॉर्मेशन को किसी भी तरह से एक्सेस कर सकते हो। अब वो तरीका क्या हो सकता है? आप उसके नोट्स ले सकते हो, एक्सट्रैक्ट ले सकते हो, कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हो, उसको सिर्फ इंस्पेक्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड को या वर्क को। कहीं सड़क वड़क बन रही, सीमेंट बन रही, सीमेंट का यूज़ हो रहा है तो सैंपल ले सकते हो, या उसको आप डिस्क में, फ्लॉपी में, टेप में, वीडियो कैसेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, प्रिंट आउट में, किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन को आप मांग सकते हो। कहाँ से? पब्लिक अथॉरिटी से। तो कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी? पब्लिक अथॉरिटी से मांगना है। क्या मांगना है? इन्फॉर्मेशन मांगना है। कैसे मांगना है? बोले चाहे नोट्स ले लो, एक्सट्रैक्ट ले लो, सर्टिफाइड कॉपी ले लो, इंस्पेक्शन कर लो, सैंपल ले लो। अब है ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। भाई सरकारी डिपार्टमेंट की, पब्लिक अथॉरिटी की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? तो नाम से क्लियर है भैया कि उनको अपने यहाँ जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, है ना, जितने भी मैनुअल, रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन वगैरह पब्लिश होते हैं, उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। क्योंकि कल को कभी कोई सिटीजन मांगने आएगा तो क्या दोगे? क्योंकि एक्ट में तो लिखा है कि देना पड़ेगी इन्फॉर्मेशन मांगी है तो उसके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके तो रखो, उसको रिकॉर्ड करके तो रखो। तो डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में, कामकाज में जो जो कुछ होता है उन सबको आपको क्या करना है? रिकॉर्ड करके रखना है, ठीक है। और एक्ट आने के बाद तो आपको रिकॉर्ड रखना ही है। एक्ट जिस दिन आया था उस दिन के 120 दिन के अंदर अंदर पुराने जितनी भी चीज़ें उन सबको प्रॉपरली मेंटेन करना। चूंकि वो 120 दिन तो गुजर गए तो अब इस पॉइंट का कोई महत्व नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो पहले ये देख लें, एवरी पब्लिक अथॉरिटी हैज़ टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, मैनुअल्स, रूल्स, रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। दूसरा, एक्ट आने के 120 दिन के अंदर अंदर फॉलोइंग डिटेल्स पब्लिश कर लेनी है। क्या क्या डिटेल्स? उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स कि उसके क्या फंक्शन है, क्या ड्यूटीज़ हैं। जैसे सेबी है तो सेबी का क्या काम है और क्यों बनाया है, उसके सारे ऑफिसर और एम्प्लॉयज़ के पावर, ड्यूटीज़ वगैरह, उनकी डिटेल। डिसीजन मेकिंग कैसे होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप अपने फंक्शंस कैसे डिस्चार्ज करते हो, कैसे यूज़ करते हो, क्या स्टैंडर्ड्स हैं यूज़ करने के, नॉर्म्स क्या है, किस आधार पे आप अपने फंक्शंस यूज़ करते हो, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं वो अपने किन अधिकारों से अपने काम करते हैं वो। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ कैसे काम करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शन, मैनुअल, रिकॉर्ड, यानी कि वो सारे स्टैंडिंग ऑर्डर्स, वो सारे रूल्स जो आपके एम्प्लॉयज़ फॉलो करते हैं काम करने के पहले, ठीक। इसके अलावा जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उनकी एक लिस्ट, ये सारी चीज़ें क्या करनी है? पब्लिश करनी है। कितने दिन में? विद इन 120 डेज ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक। और भी चीज़ें हैं कुछ, 7th 8th, इतनी सारी चीज़ें देखो। और क्या क्या करना है? तो देखो, डिटेल ऑफ काउंसिल कमिटीज़, अगर आपकी अथॉरिटी में कुछ काउंसिल या कमिटीज़ बनी है तो उनकी भी डिटेल्स, किसने बनाई हैं, क्या उनकी जो जानकारियां हैं मीटिंग की वो ओपन टू पब्लिक हैं, क्या जनता उनकी उन कमिटी या काउंसिल की मीटिंग्स के मिनट्स पढ़ सकती हैं, ये तमाम जानकारियां आपको पब्लिश करनी है, ठीक। सारे ऑफिसर्स की और एम्प्लॉयज़ की डायरेक्टरी, उनका नाम, पता, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, हर एम्प्लॉय और ऑफिसर का मंथली रेम्यूनरेशन, सैलरी कितनी है, आपको सरकार की तरफ से बजट कितना एलोकेट होता है आपके डिपार्टमेंट को, अगर आपका कोई सब्सिडी वगैरह मिलती है सब्सिडी प्रोग्राम के तहत तो कितनी मिलती है और कहाँ यूज़ करते हो, ठीक। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हो उसकी जानकारी कि भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन फिजिकल फॉर्म में मिलेगी और ये वाली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये बाइफर्केशन भी आपको पब्लिश करना है। अगर कोई व्यक्ति इन्फॉर्मेशन मांगने आएगा तो क्या फैसिलिटी मिलेगी उसको, कितने दिन में दी जाएगी, कौन सा हमारा लाइब्रेरी या रीडिंग रूम है जहाँ बैठ के आप इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हो, इसकी जानकारी। इसके अलावा हर डिपार्टमेंट का एक पीआई होगा, हर डिपार्टमेंट का एक पीआई होगा, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, तो उसका नाम, डेजिग्नेशन,
और उसकी अदर डिटेल्स, इसके अलावा और भी जो जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं वो सब। इस प्रकार से कुल 15 चीज़ें एक्ट आने के 120 दिन के अंदर अंदर हर पब्लिक अथॉरिटी को पब्लिश करनी थी आम जनता के लिए, जो कि ये सारी चीज़ें वो कर चुके हैं। एक्ट आए को 120 दिन हो चुके हैं। 12 अक्टूबर 2005 को एक्ट भारत में इफेक्टिव हो गया था, तो सोचो कभी से हो चुके हैं, लेकिन ये रीड ओनली पॉइंट था एक। चलो आगे है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं ये वो ऑफिसर होता है जो जानकारी देता है, इंफॉर्मेशन इसी के पास जाके मांगी जाती है। अब ये दो लेवल्स पे होता है, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, ठीक। और इसका एक असिस्टेंट होता है, वो असिस्टेंट भी स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे होता है। तो कितने हो गए देखा जाए तो भाई, एक हो गया पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और एक हो गया असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब ये सेंट्रल और स्टेट लेवल पे है, मतलब सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और ये भी सेंट्रल स्टेट दोनों लेवल पे, तो सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, मतलब CPIO SPIO और KPO SAPO। कितना आसान है याद करना, है ना। तो ये हो गया डेजिग्नेशन सेंट्रल या स्टेट PIO, फिर डेजिग्नेशन सेंट्रल असिस्टेंट स्टेट असिस्टेंट PIO। किस लेवल पे होता है, तो ये जो PIO होता है ये एट ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेस, हर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, यानी कि जो बड़े ऑफिस होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है जहाँ से पूरा कामकाज चलता है, या बड़ा ऑफिस जो होता है वहाँ पे ये PIO होता है। और जितने भी सब डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे, वहाँ पे APIO बैठता है, ठीक। तो अगर APIO के पास एप्लीकेशन गई है तो वो PIO के पास फॉरवर्ड करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, फिर वहाँ से जानकारी आएगी, ठीक। इनका काम है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक। क्या काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जिन्होंने रिक्वेस्ट की है। और असिस्टेंट PIO का क्या काम है कि वो जो एप्लीकेशन आई है इन्फॉर्मेशन की उसको PIO के पास फॉरवर्ड करना, मतलब APIO का काम है इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करना, जबकि PIO का काम है इन्फॉर्मेशन देना। आसान है। चलो अच्छा, एक प्रश्न और है कि क्या किसी व्यक्ति से पूछा जाएगा कभी भी PIO या APIO के द्वारा कि आप क्यों मांग रहे हो इन्फॉर्मेशन? नहीं पूछा जाएगा भाई, उसको इन्फॉर्मेशन मांगी है तो दो, आप उससे कारण नहीं पूछते कि क्यों चाहिए। क्या आप फलाने नेता को उजागर करना चाहते हो उसके घोटाले को? अगर ऐसा है तो हम नहीं देंगे क्योंकि वो नेता हमको डांटेंगे। तो भैया ये सब कुछ नहीं चलेगा। इन्फॉर्मेशन मांगी है सिटीजन ने, आप दो। यू कैन नॉट आस्क अ रीजन कि आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, ठीक। अब PIO की ड्यूटीज क्या है भाई? सबसे पहले रिटर्न एप्लीकेशन को राइट करने में असिस्ट करे, ठीक। अगर उसको लगता है किसी और पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड है तो उनके पास भेज दे कि भाई आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ गए हो, जबकि इन्फॉर्मेशन आप जो चाह रहे हो वो GST काउंसिल की है। तो अगर किसी और पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो उनके पास भेज दे, है ना। या वो इन्फॉर्मेशन 5 दिन के अंदर अंदर उस पब्लिक अथॉरिटी को भेज दे, ठीक। और एप्लीकेंट को भी इमीडिएटली बता दे कि सर वहाँ पे मिलेगी आपको इन्फॉर्मेशन, हमारे यहाँ से नहीं मिलेगी। एक तो ये ड्यूटी है ना, कि रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर दे। तो पहली ड्यूटी असिस्ट करे, अगर लिखना नहीं आ रही किसी एप्लीकेंट को एप्लीकेशन तो उसको असिस्ट कर दे कि ऐसे लिखते हैं, है ना। आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए बताओ, मैं आपके एप्लीकेशन लिखवाने में मदद कर देता हूँ, फिर आप वो एप्लीकेशन मुझे दे देना। दूसरा ट्रांसफर कर दे उसकी रिक्वेस्ट को, अगर दूसरी पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड है तो। समझते जाना बच्चों, असिस्ट इन राइटिंग एप्लीकेशन, दूसरा ट्रांसफर द रिक्वेस्ट, तीसरा प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। अगर वो प्रॉपर हम मेरी अथॉरिटी से रिलेटेड है तो PIO की ड्यूटी बनती है कि वो इन्फॉर्मेशन जितनी जल्दी हो सके दे दे। मैक्सिमम 30 दिन का टाइम रहता है जनरली, ठीक। लाइफ और लिबर्टी का सवाल हो किसी की तो फिर 48 आवर्स, किसी और पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड हो तो 35 डेज, किसी व्यक्ति की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 40 डेज, ये कुछ टाइम पीरियड है। APIO को इन्फॉर्मेशन दी हो तो 35 डेज, PIO को दी हो तो 30 डेज। ये 4-5 टाइम फ्रेम्स है जो मैं आपके सामने पहले बता भी चुका हूँ, अभी आपने सुन भी लिया है मुझसे। इसके बाद एक ड्यूटी उसकी ये भी है कि अगर इन्फॉर्मेशन रिजेक्ट करने जैसी है तो रिजेक्ट कर दे, ठीक। कब? जब वो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई है जो प्रोवाइड नहीं की जा सकती है, इफ ए कैन नॉट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसको रीज़न बताना पड़ेगा रिजेक्शन का कि क्यों नहीं दे सकता मैं, है ना। इसके अलावा अगर उसको लगता है कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, सामने वाला अपील करेगा मेरे रिजेक्शन के खिलाफ, तो अपेलेट अथॉरिटी की भी जानकारी उसको एप्लीकेंट को देना पड़ेगी कि साहब मैं तो रिजेक्ट कर रहा हूँ ये एप्लीकेशन, क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपने मांगी, ये तो हम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने गलत तरीके से रिजेक्शन किया है तो आपको ये अपेलेट अथॉरिटी इनके पास जा सकते हो मेरे ऑर्डर के खिलाफ, मेरे रिजेक्शन के खिलाफ। और अपील कितने दिन में कर सकते हो इसकी भी डिटेल बताएगा, ताकि सिटीजन को कोई दिक्कत ना हो। PIO पूरी तरह से हेल्प करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा, नहीं देने जैसी होगी तो मना कर देगा,
रीज़न भी देगा, और अगर आपको इस बात से बुरा लगा है तो आप अपील कर सकते हो और कितने दिन में कर सकते हो, ये सारी बातें बताता है। इसके अलावा पार्शियल एक्सेस के समय भी उसकी ड्यूटी होती है। पार्शियल एक्सेस मतलब अगर पार्शियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपने 2 इन्फॉर्मेशन मांगी, उसमें से एक तो दे सकता हूँ, एक नहीं दे सकता, तो उस समय उसकी ड्यूटी होती है कि जो एक दे सकता है वो दे, जो नहीं दे सकता है उसका रीज़न बताए। ये सारी ड्यूटीज़ हैं किसकी? पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर की। अच्छा, अब पार्शियल एक्सेस की जब बात आई ही है तो उसको और अच्छे से समझ लेते हैं। द PIO कैन अलाउ पार्शियल एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन, है ना, अगर वो इसका क्या दे दे, एप्लीकेंट को नोटिस कि सर आपने इन्फॉर्मेशन मांगी थी इतनी सारी, 4, जिसमें से मैं आपको 3 दे सकता हूँ, 1 नहीं दे सकता। पार्शियल मतलब क्या? अधूरा, पूरा तो नहीं दूंगा, 4 में से 4 नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि उनमें से एक ऐसी जो सीक्रेट है, इंटेलिजेंस की है, देश की खुफिया उसकी है, जो भी मतलब इससे रिलेटेड है कि नहीं दी जा सकती है। ठीक, तो पहले तो वो पार्शियल एक्सेस का रीज़न बताएगा कि पार्शियल क्यों दे रहा हूँ। ठीक, दूसरा, उस ऑफिसर का नाम और डेजिग्नेशन जिसने ये डिसाइड किया है कि भैया पार्शियली एक्सेस देना है, यानी कि अगर PIO ने खुद ने डिसाइड किया तो अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएगा। फिर रिवाइज्ड फीस कि सर पहले आपसे हमने फीस इतनी मांगी थी इन चारों इन्फॉर्मेशन की, पर जब ये एक वाली दे ही नहीं पा रहे हम इन्फॉर्मेशन, 4 में से 3 ही दे रहे हैं, तो आपकी रिवाइज्ड फीस इतनी होती है, थोड़ी सी कम। और जो अनडिस्क्लोज पार्ट है, जो इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या रेमेडी है, चाहो तो अपील कर लो, जो भी है वो रेमेडी भी बताएगा। ठीक, तो ये सारे रूल्स हैं रिगार्डिंग पार्शियल एक्सेस। ठीक है। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कौन करेगा, तो बोले एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री कैन रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक, पर वो इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कैसे करेगा? स्पेसिफाइड मैनर में। वो गया और ओरली बोल दे ये वाली इन्फॉर्मेशन दे, तो ऐसे नहीं चलेगा, देयर इज ए मैनर। ठीक, वो मैनर क्या है? राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिकली, या तो इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो, वो भी एक प्रकार से राइटिंग है, या फिर कागज पे, अलॉन्ग विथ प्रिस्क्राइब्ड फीस। और वो फीस कितनी होगी? डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन किस प्रकार की है, और वो फीस कैलकुलेट करके कौन बताएगा? PIO। तो PIO की एक ड्यूटी ये भी है, टू कैलकुलेट एंड इंटीमेट द फीस फॉर इन्फॉर्मेशन। चाहो तो ये भी लिख सकते हो आप। परफेक्ट। अच्छा, टाइम फ्रेम कितना है भैया, है ना, ये क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी, है ना, आपका टाइम कम लगे और रिवीजन ज़्यादा हो जाए, इसके लिए हमने ये सीरीज चालू की है। तो अब यहाँ PIO कितने दिन में देगा इन्फॉर्मेशन, उसका टाइम फ्रेम कितना है? पर्टिकुलर डेज कमेंट्स। अगर लाइफ और लिबर्टी हो किसी की इन्वॉल्व तो 48 आवर्स, बाकी नॉर्मल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन 30 डेज। अगर APIO से इन्फॉर्मेशन मांगी हो तो 35 डेज, किसी थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो 40 डेज, और उसके पर्टिकुलर या कमेंट्स अपन ने साइड में देखी हैं। अच्छा, अगर 30 दिन में अगर कोई जवाब नहीं देता है PIO, तो समझ जाओ कि उसने क्या कर दिया, इफ नो एक्शन ऑन एप्लीकेशन फॉर 30 डेज इज अ डीम्ड रिफ्यूजल। ठीक, इसके अलावा फीस को कैलकुलेट और इंटीमेट करने का जो टाइम है, ये 30 डेज, 48 आवर्स, 30 डेज, 35 डेज, 40 डेज का जो टाइम फ्रेम है उसमें से एक्सक्लूड होगा। यानी कि इन्फॉर्मेशन मांगने के बाद पहले हम फीस कैलकुलेट करेंगे, फिर फीस बताएंगे, फिर वो फीस पे करेगा, फीस पे करने के बाद से टाइम चालू होता है। वो जो फीस कैलकुलेट और इंटीमेट करने का टाइम पीरियड है वो इसमें से एक्सक्लूडेड है। ठीक, बहुत अच्छा। अब अगली हेडिंग है एग्जेम्पशंस अंडर द एक्ट। इस एक्ट में कुछ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है और कुछ कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो एग्जेम्प्टेड है। देखो, इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ वो सूचनाएं हैं जो नहीं दी जा सकती। जैसे कि गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट की सभी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, एक दो इन्फॉर्मेशन को छोड़ के। मतलब वो डिपार्टमेंट तो या वो एजेंसी तो एक्सेप्टेड नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है RTI एक्ट में, पर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। और कुछ कुछ तो एग्जेम्प्टेड एजेंसीज हैं, ये वो एजेंसीज है जिनसे रिलेटेड एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। जैसे रॉ हो गया, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डिफेंस हो गया भारत का, NSG हो गया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इंटेलिजेंस। तो कुछ कुछ तो एजेंसीज हैं जो पूरी तरह से क्या है, एग्जेम्प्टेड है। तो एग्जेम्पशन में एक हो गया एग्जेम्प्टेड एजेंसीज, और एक हो गया एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन। एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन का तात्पर्य यह है कि डिपार्टमेंट तो एग्जेम्प्टेड नहीं है, लेकिन उस डिपार्टमेंट की कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है। और एग्जेम्प्टेड एजेंसीज का अर्थ है कि ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट या एजेंसी ही एग्जेम्प्टेड है RTI एक्ट के दायरे से, उनकी कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं की जाएगी, नहीं दी जाएगी। ठीक, ठीक है भैया, ये हमने पढ़ा। अब एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है, तो देखो कितना प्यारा है, वो सारी इन्फॉर्मेशंस जो भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हैम्पर कर सकती है। अब जैसे कोरोना के आंकड़े ही हैं, अब ये कुछ ऐसी बातें जो सरकार छुपा जाती है, क्यों? क्योंकि इससे देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी पे
खतरा है, देश में झगड़ा हो सकता है, देश में बवाल हो सकता है, लोग सरकार के विरुद्ध सड़क पे आ जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा, लोग तकलीफ में आ जाएंगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है, यद्यपि ये डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जिसकी इन्फॉर्मेशन छुपाई जाए, नेचुरल कैलामिटी से रिलेटेड, डिजास्टर मैनेजमेंट, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन छुपा ली जाती है ना, नहीं बताई जाएंगी, या बताई जाएंगी तो आपको जरूरी नहीं पूरी बताई जाए, मना भी कर सकते हो कि नहीं बताएंगे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिससे ऑफेंस एनकरेज होगा, ठीक, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसको स्पेसिफिकली कोर्ट ने या किसी ट्रिब्यूनल ने मना किया है कि मत देना किसी सिटीजन को, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिससे कोर्ट की अवमानना या अवहेलना होगी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो ट्रेड सीक्रेट, कमर्शियल कॉन्फिडेंस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो फॉरेन गवर्नमेंट से हमको सीक्रेटली मिली है, स्विस बैंक से काले धन की जानकारी उन्होंने कहा है कि आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, सिर्फ गवर्नमेंट को दे रहे हैं हम, तो नहीं की जाएगी ये डिस्क्लोज। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो किसी व्यक्ति की लाइफ या फिजिकल सेफ्टी को एंडेंजर करती है, कि भाई निर्भया कांड में वो 16 साल का आरोपी जो था उसका नाम क्या है, जिसको आपने 3 साल की सजा देकर छोड़ दिया क्योंकि वो माइनर था, जुवेनाइल था, तो नहीं बताएगी सरकार। क्यों? क्योंकि पता लगा तो लोग उसको मारने पीटने चले जाएंगे, उसके घर पहुंच जाएंगे और मर्डर भी कर सकते हैं, उसकी लाइफ और सेफ्टी का सवाल है, तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। आ रहा है ना समझ में? कितना आसान है। इन्फॉर्मेशन दैट विल ऑब्स्ट्रक्ट एनी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग या पुलिस की कोई इन्वेस्टिगेशन है, उसको ऑब्स्ट्रक्शन अगर होता हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। कैबिनेट के पेपर्स, मंत्रिमंडल के, इसके अलावा पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी व्यक्ति की नहीं दी जाएगी, आधार वगैरह से रिलेटेड। लेकिन अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, कोई आतंकवादी व्यक्ति हो, उसकी जानकारी सरकार के पास हो और ढूंढवाना हो उसको कि कहाँ मिलेगा, तो उसकी सब जानकारी दी जा सकती है कि भाई ऐसी ऐसी उसकी जानकारी, जो पकड़ के लाएगा उसको इनाम। अनलेस अदरवाइज पब्लिक, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व, एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। अब कुछ कुछ तो एजेंसीज ही पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है। वो कौन कौन सी एजेंसीज हैं देखें जरा, तो हम नाम देख चुके हैं जो इस एक्ट के सेकंड शेड्यूल में मेंशन्ड है। सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस, है ना, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ एजेंसीज को एग्जेम्प्ट कर सकती हैं, और ये एक्सक्लूजन भी एब्सोल्यूट नहीं है ना। अब इसका एग्जांपल ले लो आप 2-3, जैसे आईबी हो गया, आईबी यानी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अलावा सीआईडी, ठीक, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, डिफेंस से रिलेटेड और भी जो बॉडीज़ हैं, आसाम राइफल्स, सीआरपीएफ, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कोस्ट गार्ड्स, ये सब एग्जेम्प्टेड एजेंसीज हैं। लेकिन इनमें भी एग्जाम्शन है एक, मतलब एग्जेम्प्टेड एजेंसीज का एक एग्जाम्शन और एग्जेम्प्टेड एजेंसीज का एग्जाम्शन, मतलब वैसे तो ये एजेंसीज एग्जेम्प्टेड है जनरल रूल, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन, मतलब कभी कभी इनकी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ जाएगी। कौन सी इन्फॉर्मेशन? अगर इन एजेंसीज में भी करप्शन के एलिगेशन यानी आरोप हो या ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता हो, ये 2 कारण याद कर लो आप। एग्जेम्प्टेड एजेंसी में भी अगर ये 2 कारण में से कोई भी एक कारण हो, करप्शन के आरोप लगे हों या ह्यूमन राइट वायलेशन हो, तो इनको इन 2 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी, और उसके लिए टाइम लिमिट होगा 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट। लेकिन सीजी की अप्रूवल भी लगेगी साथ में, विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो पहली बात, एग्जेम्प्टेड एजेंसीज की इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं जाती, कोई सी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। लेकिन इनमें भी अगर करप्शन के एलिगेशन या ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हो, तो सीजी की अप्रूवल के बाद 45 डेज के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। ये छोटा सा एग्जेम्प्टेड एजेंसीज का एक्सेप्शन। परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं भाई। इंफॉर्मेशन कमीशन हमारे देश में बने हुए हैं, बहुत अच्छा। कितने लेवल पे हैं? ऑब्वियसली 2 लेवल पे हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन करके, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन करके, ठीक। इसका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कितने लोग होते हैं इसमें, इसका गठन कैसे होता है। तो सेंट्रल का कॉन्स्टिट्यूशन है 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर मैक्सिमम 10, मतलब 1 कमिश्नर तो कंपलसरी होगा ही होगा, चीफ कमिश्नर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और बाकी नॉर्मल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, मतलब एक CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और बाकी IC यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और ये कितने होंगे? मैक्सिमम 10, यानी 1 तो होगा ही होगा प्लस 10, 11 होते हैं। 11 से कम भी हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 10 है तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन कमिश्नर 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने भी हो सकते हैं,
10 से ज़्यादा नहीं होंगे, 10 से कम हो सकते हैं। तो मैक्स टू मैक्स 1 + 10 11 हो सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी सेम रूल है, मैक्स टू मैक्स 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो हो गए होगा, यानी कि अगेन 1 + 10 11 मैक्स टू मैक्स। ठीक, मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 1 + 1 2, एक CIC तो हो गई होगा प्लस एक IC। उसी तरह स्टेट में भी एक CIC और एक IC, वेयर CIC मीन्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और IC मीन्स इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक, अब ये IC और CIC में सेंट्रल लगा दो या स्टेट लगा दो, ठीक, जिस भी लेवल पे हैं। इनको अपॉइंट कौन करता है, तो सेंट्रल लेवल पे जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और स्टेट लेवल पे जो होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। लेकिन इनके नाम की सिफारिश कौन करता है कि भाई किसको अपॉइंट करना है, तो एक कमिटी होती है वो रिकमेंड करती है, और उस कमिटी में कौन होता है, उस कमिटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। ये 3 लोगों की कमिटी बनती है और उस कमिटी के चेयरमैन होते हैं PM ऑफ इंडिया। ठीक, तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं उस कमिटी के, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और यूनियन कैबिनेट में, जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन अधीर रंजन चौधरी, और कोई भी एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से अमित शाह या राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, कोई भी। ठीक, तो ये 3 लोगों की कमेटी बनेगी, ये 3 लोगों की कमेटी एक व्यक्ति का नाम चूज करेगी, रेकमेंड करेगी और प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक, किसे, ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और कमिश्नर को। ठीक, अब स्टेट का जो कमिश्नर होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और कमिश्नर, उनको कौन अपॉइंट करता है, तो बड़ा आसान है, गवर्नर अपॉइंट करता है। लेकिन रेकमेंड कौन करता है, उसका नाम, बोले रेकमेंड करता है स्टेट एक कमेटी। रेकमेंड कौन करती है, एक कमेटी, और उस कमेटी में कौन कौन होता है, ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर जो उस कमेटी का चेयरमैन होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और एक स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट लेवल कैबिनेट मिनिस्टर। मतलब वही बात हो गई सेम टू सेम, बस CM PM की जगह CM हो गया, बाकी सब कुछ सेम है, लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, ठीक, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो गया, बाकी सब कुछ सेम, याद करना आसान, लॉजिकल है। चलो भाई, अब प्रश्न ये है कि ये जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं सेंट्रल स्टेट लेवल पे, इनके क्वालिफिकेशन क्या होते हैं, कितना पढ़ा लिखा चाहिए, तो बोले इनका क्वालिफिकेशन ये है कि दे शैल बी पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ, महारथी होने चाहिए अपनी फील्ड में, पब्लिक लाइफ में। उनको अलग अलग वाइड नॉलेज इन स्पेसिफाइड फील्ड, किसी पर्टिकुलर एक फील्ड का भी नॉलेज हो तो वाइड हो, बहुत गहरा हो, बहुत विस्तृत हो। वो पार्लियामेंट के मेंबर या स्टेट लेजिस्लेचर या यूनियन टेरिटरी के मेंबर नहीं होने चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, और उनका खुद का कोई बिजनेस या प्रोफेशन या कोई पोस्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। दे आर फुल टाइम, दे आर टू बी वर्किंग एज अ फुल टाइम पर्सन इन इंफॉर्मेशन कमीशंस। ठीक, ये उनके क्वालिफिकेशन। ऑब्वियसली ग्रेजुएट तो होंगे ही, क्योंकि अगर इतना नॉलेज होगा तो। अब इंफॉर्मेशन कमीशन का क्या पावर है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो। स्टेट लेवल वाले स्टेट में ये पावर एक्सरसाइज करेंगे, सेंट्रल लेवल वाले यूनियन में, सेंटर में ये पावर एक्सरसाइज करेंगे। इसलिए अपन ने कॉमनली उठाया ये पॉइंट। कंप्लेंट रिसीव कर सकते हैं सेंट्रल या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उनको ये ड्यूटी है कि वो कंप्लेंट ले फ्रॉम एनी पर्सन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। किन किन सर्कमस्टांसेस में कंप्लेंट आएगी उनके पास, तो देखो सर्कमस्टांसेस कौन कौन सी हो सकती है जब उनके पास कंप्लेंट आएगी, कि PIO अपॉइंट ही नहीं किया किसी पब्लिक अथॉरिटी ने, से रेलवे डिपार्टमेंट ने PIO अपॉइंट नहीं किया है, तो रेलवे की इन्फॉर्मेशन मांगने में गया, उन्हें मना कर दिया, तो मैं सीधे इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास जाऊंगा, सेंट्रल चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के पास, क्योंकि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, तो PIO अपॉइंट नहीं किया है, इस बात की कंप्लेंट कौन लेगा, रिसीव करेगा, सेंट्रल का सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। या मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी थी गलती से, या मेरी रिक्वेस्ट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, या मुझसे फीस अनरीजनेबली हाई फीस चार्ज कर ली है, या इन्फॉर्मेशन मुझे गलत दी है, झूठी दी है, या मिसलीडिंग दी है, या इनकम्प्लीट दी है। ठीक, इसके बाद इन्फॉर्मेशन कमिश्नर क्या करेगा, वो इंक्वायरी करेगा, और इंक्वायरी करने के बाद अगर उसको लगता है कुछ गड़बड़ हुई है, तो उसको वो सारे पावर जो एक सिविल कोर्ट को इंक्वायरी करते समय होते हैं, ठीक, और उसके बाद जो भी डिसीजन मेकिंग होगी वो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर करेगा। मतलब बहुत बड़ा पावर है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का। PIO से ऊपर कौन है देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, ठीक है। अपेलेट अथॉरिटीज इस एक्ट में, बहुत अच्छा, अगर आपको PIO के पास जाकर एप्लीकेशन मांगने का मन किया, आपने एप्लीकेशन लगाई, PIO ने मना कर दी, ठीक, रिजेक्ट कर दी, तो आप क्या हो गए, आप हो गए अग्रीव्ड, ठीक, या डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन ऑफ PIO,
या उसने टाइमली नहीं दी, 30 दिन का टाइम था, आपको इन्फॉर्मेशन देने में 50 दिन लगा दिए। तो भाई अपील कब करोगे? अपील कब की जा सकती है? सर्कमस्टेंसेज में अपील कैन बी फाइल्ड इफ अ पर्सन डज नॉट रिसीव डिसीजन विद इन स्पेसिफाइड टाइम। मिलेगी नहीं मिलेगी इसका जवाब ही नहीं दे रहे हो, या पीआईओ के डिसीजन से मैं असंतुष्ट हूँ, उसने मना कर दिया है इन्फॉर्मेशन देने से जबकि मुझे लगता है गलत है, तो आप क्या करोगे? तो आप करोगे अपील। सबसे पहले फर्स्ट अपील करोगे। कौन करेगा अपील? ऑब्वियसली अग्रीव्ड पर्सन। किसके पास जाके करेगा? पीआईओ का जो सीनियर ऑफिसर है उनके पास जाके। वो आपको बता देगा पीआईओ खुद ही रिजेक्शन करते समय कि आप अपील करने कहाँ जा सकते हो। तो पीआईओ के ऊपर जो सीनियर ऑफिसर है वहां जाके अपील करोगे। अभी इन्फॉर्मेशन कमीशन में नहीं जा रहे हो, अपील होगी पीआईओ के सीनियर ऑफिसर के पास। कितने दिन में? जिस दिन लास्ट डेट थी इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए थी, यानी कि मैंने एप्लीकेशन लगाई थी 1 जनवरी को और 15 जनवरी तक मुझे नहीं मिली इन्फॉर्मेशन, तो अभी 16 जनवरी को अपील नहीं करूंगा, क्योंकि अभी टाइम लिमिट है एप्लीकेशन लगाने के। 30 दिन के अंदर अंदर कभी भी दे सकता है पीआईओ इन्फॉर्मेशन। तो मैं कब तक वेट करूंगा? 30 जनवरी तक। तो 1 जनवरी को एप्लीकेशन लगाइए, 30 जनवरी तक वेट करूंगा। 30 जनवरी इज द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइम ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। और 30 जनवरी को नहीं दी इन्फॉर्मेशन तो 31 जनवरी के दिन मैं अपील कर सकता हूं। तो अपील करने का टाइम कब से स्टार्ट होगा? जिस दिन मेरा प्रिस्क्राइब्ड टाइम खत्म हुआ है 30 डेज का, उस दिन से 30 दिन मिलते हैं मुझे अपील करने के। अपील करने के लिए कितने दिन मिलते हैं? 30 दिन। और अपील करने का मेरा टाइम पीरियड स्टार्ट कब होता है? वो वाला टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, जिस टाइम पीरियड में इन्फॉर्मेशन देना चाहिए थी पीआईओ को पर उसने नहीं दी, वो टाइम पीरियड 30 दिन का खत्म होता है। उसके बाद 30 दिन अपील करने के लिए मिलते हैं। अब आया समझ में? ये टाइम लिमिट 30 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइम और रिसीट ऑफ डिसीजन। क्या एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल जाता है आपको? हाँ, अगर सफिशिएंट कॉज हो तो आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी मिल जाता है। अच्छा, अपील कितने दिन में डिसीजन आ जाएगा अपील का? तो 30 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का और एक्सटेंशन कर दो तो 45 डेज, मतलब 30 + 15 45 डेज। अपील का डिस्पोजल यानी अपील कितने दिन में अपील का डिसीजन आ जाएगा? 30 डेज में। और अपील का डिसीजन आने में टाइम लग रहा है तो 15 दिन का और एक्सटेंशन, मैक्स टू मैक्स 45 डेज में। मतलब एक सिंपल एग्जांपल देखो आप, मैंने एप्लीकेशन लगाई पीआईओ के पास 1 जनवरी के दिन, ठीक, और इसने 30 जनवरी तक डिसीजन नहीं दिया, तो मेरे पास अपील करने का समय है ना। उसने मना ही कर दिया कि मैं नहीं दूंगा 30 जनवरी के दिन, तो मैं अपील करूंगा। अपील किस दिन से करने का टाइम मिलेगा मुझे? 31 जनवरी से अपील करने का टाइम मिलेगा। अब 31 जनवरी से कब तक? 30 दिन जोड़ो, तो एक दिन तो जनवरी का हो गया और 29 दिन फरवरी के, से लीप ईयर है तो 29 दिन फरवरी के, तो 29 फरवरी तक का मेरे पास टाइम है अपील करने के लिए। मान लो मैंने 29 फरवरी के दिन ही अपील करी, लास्ट डे बिल्कुल, आज अपील की, कल से प्रोसीडिंग चालू हुई, तो 1 मार्च से प्रोसीडिंग चालू हुई। तो ये डिसीजन कितने दिन में आ जाएगा? 1 मार्च से 30 मार्च के बीच में, विद इन 30 डेज डिसीजन आ जाएगा, ठीक। और उसमें भी नहीं आ पाया तो 15 दिन और जोड़ लो, मतलब एक दिन मार्च का और बचा, 31 मार्च, और 14 दिन अप्रैल के, यानी 14 अप्रैल को 45 डेज हो रहे हैं। 14 अप्रैल के पहले पहले तो मेरी अपील का डिसीजन आ जाएगा। अब आया समझ में टाइम फ्रेम? चलो, अब आप मान लो अपील की और अपील में भी हार गए, वहां भी उन्होंने मना कर दिया, तो आप सेकंड अपील कर सकते हो। अब सेकंड अपील किसके पास करोगे? सेकंड अपील शैल बी मेड बाय द अग्रीव्ड पर्सन टू द सीआईसी और एसआईसी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के पास। सेकंड अपील का डिसीजन, सेकंड अपील के लिए कितना टाइम है? फर्स्ट अपील के डिसीजन से 90 डेज, यहाँ पे टाइम लिमिट ज़्यादा है। फर्स्ट अपील का डिसीजन जिस दिन आपके हाथ में आया, आप अग्रीव्ड हुए उससे 90 डेज के अंदर, और उसमें 90 डेज में नहीं कर पाओ तो एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज पॉसिबल। कितना ये नहीं लिखा, लेकिन सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा, सफिशिएंट कॉज हैज टू बी गिवन। चलो भाई, आसान है। फिर है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ थर्ड पार्टी अपील एज वेल इन द एक्ट। इट कैन बी फाइल्ड बाय द थर्ड पार्टी अगेंस्ट पीआईओ डिसीजन। मान लो अगर कोई थर्ड पार्टी है जिसकी इन्फॉर्मेशन पीआईओ ने किसी व्यक्ति को दे दी है, ठीक, और मुझे लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैं सचिन तेंदुलकर हूँ और मैंने कितना टैक्स भरा है इस साल, या आपने किसी को इन्फॉर्मेशन में बता दिया, तो लोगों की नज़र लगती है मेरी इनकम पे, मेरे बच्चे अनसेफ हो जाते हैं, कभी स्कूल से आते समय किसी ने किडनैप कर लिया, तो सचिन के पास बहुत पैसा है, उसने इस साल 15 करोड़ का टैक्स भरा है, तो कितने करोड़ों में कमाया होगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो मैं थर्ड पार्टी हूँ, इनकम टैक्स अथॉरिटी एक पार्टी है, रामलाल नाम का एक व्यक्ति दूसरी पार्टी है। रामलाल ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मांगी, ये दोनों फर्स्ट सेकंड पार्टी और मैं थर्ड पार्टी, मेरा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, और मैं अग्रीव्ड हूँ पीआईओ के डिसीजन से कि आपने मेरी इन्फॉर्मेशन दे कैसे दी, तो थर्ड पार्टी भी अपील कर सकती है, और उसके पास टाइम कितना है अपील करने का? 90 डेज। 30 डेज फॉर, वही अगेन सेम,
अपेलेट अथॉरिटी के पास 30 डेज और उसकी सेकंड अपील करने के लिए अगेन 90 डेज। तो अपील करने का टाइम उतना ही है, 30 डेज और 90 डेज। पर ये कंसेप्ट है थर्ड पार्टी अपील की। थर्ड पार्टी किसे कहते हैं? पर्सन अदर देन द पब्लिक PIO एंड द पर्सन हु मेड अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन करने वाले और PIO के अलावा जो अदर देन, इन दोनों के अलावा जो तीसरा व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी। कंसेप्चुअली क्लियर भैया? चलो आगे है, पेनल्टीज कितनी हैं तो देख लेते हैं। पेनल्टी लगाता कौन है? इन्फॉर्मेशन कमीशन, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो। किस पे लगती है? पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पे। कब लगती है? जब उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो, या रॉन्गफुली रिजेक्ट की हो, इनकम्प्लीट दी हो, फॉल्स दी हो, मिसलीडिंग दी हो, टाइमली नहीं दी हो, या डिले करे जा रहा है अभी तक नहीं दी हो। 30 दिन तो कब के निकल गए, 100 दिन हो गया इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट किए, अभी तक नहीं दी है। और कितनी पेनल्टी लगती है? फाइन 250 रुपया पर डे अप टू मैक्सिमम ऑफ 25,000 रुपीज। 25,000 रुपये मैक्सिमम, यानी 100 दिन। ठीक, तो जिस दिन टाइम पीरियड खत्म हुआ 30 दिन का, उस दिन से 100 दिन स्टार्ट होंगे। ठीक, 100 दिन में 250 इंटू 100 25,000 हो जाते हैं। उसके बाद अगर 150 दिन हो जाए तो भी 25,000 ही लगेगी, उससे ज़्यादा पेनल्टी PIO पे नहीं लगेगी। और किन कारणों से लगेगी पेनल्टी, ये बताया अभी आपको मैंने। PIO पे लगेगी अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करता है, डिले करता है विदाउट रीजनेबल कॉज, मैलिफाइड यानी रॉन्ग इंटेंशन से डिनाई करता है इन्फॉर्मेशन देने से, जानबूझकर इनकम्प्लीट, इनकरेक्ट, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता है ताकि देना ना पड़े, या इन्फॉर्मेशन देने के दौरान रोड़े अटकाता है, ऑब्स्ट्रक्शन करता है। इन कारणों से पेनल्टी लग सकती है। किस पे? पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर पे। अब अमेंडमेंट क्या हुए हैं, देखो अमेंडमेंट भी ज़रूरी है, देख लेते हैं एक बार। राइट टू इन्फॉर्मेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखो भाई, ये अमेंडमेंट बनाया गया है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर टर्म ऑफ ऑफिस, सैलरीज, अलाउंसेस एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ CIC, IC, SIC एंड IC, मतलब बेसिकली ये जो अमेंडमेंट है ये टर्म, सैलरी वगैरह डिसाइड करने के लिए आया है। किस किस की? तो देखो, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर कितने प्रकार के होते हैं? बोले 2 प्रकार के, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और नॉर्मल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं ये कितने लेवल पे होते हैं? बोले स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। उसी तरह से IC कितने प्रकार के होते हैं? बोले स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। अब आपको ये पूरा लॉजिक समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक बच्चों, ये जो लोग हैं, ये मैंने स्टेट ऊपर लिखा है, सेंट्रल नीचे लिख दिया, वैसे सेंट्रल ऊपर आता तो भी अच्छा लगता। ये पूरा खेल है। तो कुल कितने तरह के लोग हो गए हमारे पास? सेंट्रल का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल का इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट का इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इन चारों की सैलरी, टर्म ऑफ ऑफिस, कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे, एटसेट्रा, ये चीज़ें प्रिस्क्राइब करने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नई चीज़ नहीं है, एकदम कंसेप्चुअली क्लियर है आपको कि क्या पढ़ने वाला है। तो देखिए ज़रा, टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेंटर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रिलेटेड है, सेंटर से रिलेटेड है, क्या है ज़रा देख लें। तो भैया ये जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं ये कब तक अपने ऑफिस में रहेंगे? 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 5 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। ठीक, हाँ, एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, और इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। ठीक, लेकिन इंफॉर्मेशन कमिश्नर अगर रिटायर होता है तो वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट जरूर हो सकता है। समझना है बात को। देखो, अगर कोई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, ठीक, और वो रिटायर हुआ, से वो 54 की एज में अपॉइंट हुआ था और 5 साल का टर्म था, तो 54 + 5 59 की एज में रिटायर हुआ, तो अभी 65 का नहीं हुआ है, तो क्या ये अपॉइंट हो सकता है वापस? बोले हाँ, लेकिन अब की बार इंफॉर्मेशन कमीशन के तौर पे अपॉइंट नहीं होगा। अगर उसका काम अच्छा लगा है तो आप उसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट
कर सकते हो अगले 5 साल के लिए। लेकिन कोई चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर था ऑलरेडी और वो रिटायर हुआ है, चीफ रिटायर हुआ है, तो वो रीअपॉइंट नहीं होगा, रीअपॉइंट नहीं होगा। तो चीफ अगर रिटायर हुआ है तो वो रीअपॉइंट नहीं होगा। कमिश्नर, नॉर्मल कमिश्नर रिटायर हुआ है तो वो रीअपॉइंट कमिश्नर के पोस्ट पे नहीं होगा, लेकिन वो एज अ चीफ कमिश्नर जरूर अपॉइंट हो सकता है एक बार। ठीक, अब ये का ये रूल सिंपली किस में लगाना है, स्टेट में भी। जो सेंट्रल में है वही स्टेट में है। और एज कितनी है, मैक्सिमम एज, तो मैक्सिमम है 65 ईयर्स। तो या तो 5 साल का टेन्योर या 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, ये इनका वर्किंग टेन्योर है। देखिए जरा, यही लिखा है। आगे, provided further that where the information commissioner is appointed as the chief information commissioner, his term of office shall not be more than 5 years in aggregate as the information commissioner. The salaries and allowances payable to and other forms and condition of service of chief information commissioner and other information commissioner shall be such as may be prescribed by CG. तो एक्ट में बेसिकली उन्होंने सैलरी और अलाउंसेस की बात की ही नहीं, की तो, पर क्या की कि हाँ सैलरी और अलाउंसेस उनको दिए जाएंगे, पर वो एग्जैक्टली कितने होंगे ये सीजी प्रिस्क्राइब करेगी नोटिफिकेशन जारी करके। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सीजी पे डाल दिया है कि सीजी डिसाइड करे कि कितनी सैलरी दी जाएगी। अब जो हमने सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में सेक्शन 13 में पढ़ा है, सेम टू सेम सेक्शन 16 में स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में जान लेना चाहिए, सेम टू सेम। बस जहां जहां सेंट्रल है वहां क्या लगा देना, स्टेट लगा देना। ठीक है, ये हो गया भाई। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर हुआ पूरा। इसका ज़बरदस्त हम लोगों ने क्विक रिवीजन सीरीज जो हमारी है, क्विक कंसेप्ट रिवीजन सीरीज, ये हम लोगों ने पढ़ा। ये बहुत काम आने वाला है जो आपने आज पढ़ा है, आपको एग्जाम में आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। फिर अगले किसी बढ़िया चैप्टर के रिवीजन के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।